FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عالمی نیٹ ورک کا ایک اور کارندہ گرفتار کر لیا۔ ملزم مبشر نے شہری کو اسپین بھجوانے کا جھانسا دے کر 47 لاکھ روپے ہتھیائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی نیٹ ورک کا ایک اور کارندہ، ایک اور انسانی اسمگلر گرفتار۔ FIA نے لینڈ روٹ ایجنٹ مبشر عنایت کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مبشر کو موریطانیہ حادثے میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ ملزم نے شہری کو اسپین بھجوانے کے لیے 47 لاکھ روپے ہتھیائے۔ شہری کو وزٹ ویزا پر موریطانیہ بھجوایا گیا۔ شہری کو سمندر کے راستے یورپ بھجوانے کی کوشش کی گئی۔ شہری نے جان لیوا سمندری سفر سے انکار کر دیا اور وطن واپس آ گیا۔ شہری کی نشاندہی پر ملزم مبشر کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم مبشر عنایت کے قبضے سے اہم شواہد برآمد کر لیے گئے۔ فیصل آباد میں شہریوں کی لاپرواہی سے ٹریفک حادثات کا خدشہ۔ مصروف ترین پل نشاط آباد پر ون وے کی خلاف ورزی عام موٹر سائیکل اور رکشے اطراف کا خیال کیے بغیر بھگائے جانے لگے۔ اہم ترین شاہراہ پر کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ شہریوں کا ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں شہریوں کی لاپرواہی سے ٹریفک حادثات کا خدشہ ہے۔ مصروف ترین پل نشاط آباد پر ون وے کی خلاف ورزی عام۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے۔ جی طلحہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اہم ترین شاہراہ پر کسی بھی بڑے حادثات ہو سکتے ہیں اور شہریوں کا ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس کا مطالبہ ہے۔ اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں شہریوں کی لاپرواہی سے ٹریفک حادثات کا خدشہ ہے۔ مصروف ترین پل نشاط آباد پر ون وے کی خلاف ورزی عام ہو گئی ہے۔ موٹر سائیکل اور رکشے اطراف کا خیال کیے بغیر بھگائے جانے لگے ہیں۔ اہم ترین شاہراہ پر کسی بھی وقت بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہریوں کا ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس کا مطالبہ ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہریوں کا ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، اس وقت طلحہ باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طلحہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں ٹریفک مسائل جو ہیں وہ حل نہ ہو سکے، اسی حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں نشاط آباد پل کے پاس، جہاں دونوں جانب سے دونوں اطراف سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ شہری جو ہے وہ بری طرح یہاں پہ روڈ جو ہے اس کو بلاک کرنے میں ان کا خود ہی اپنا ہاتھ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین رحمان آپ کو دکھا سکے میرے جو اطراف میں ہے، اگر یہاں نشاط آباد کے پل سے جو ٹریفک آتی ہے یہ ون وے کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہاں پہ یو ٹرن جو ہے لے کے ٹریفک یہاں پہ جو ہے جس کی وجہ سے بری طرح یہاں پہ جام ہونا جو ہے معمول ہو چکا ہے، جس کے باعث جو یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ شہری ہیں یہاں پہ وہ سفر کرنے میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا درپیش ہے۔ نہ صرف یہ نشاط آباد پل بلکہ دوسری جانب اگر دکھا سکے میرا کیمرہ مین رحمان آپ کو کہ یہاں پہ دوسری جانب شیخ پورہ روڈ سے جو ٹریفک آتی ہے وہاں بھی بری طرح سے جو لوگ ہیں ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کے باعث جو صحیح سمت سے آنے والی ٹریفک ہے وہ بھی بری طرح یہاں پہ متاثر ہے اور ٹریفک حادثات ہے جو ہیں اس میں بھی دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کے علاقہ مکین بھی ہیں، یہاں پہ سفر بھی کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو کن مشکلات کا شکار ہیں آپ؟ سر یہاں پہ گھنٹہ ٹریفک جام رہتی ہے، ایکسیڈنٹ کا بہت زیادہ شمار ہے۔ یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ ایک وارڈن والا تشکیل دیا جائے جس کی پراپر ڈیوٹی ہو یہاں پر روزانہ کی بیس پہ، ڈیلی بیس پہ، تاکہ یہ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو سکے اور عوام کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ جی بالکل، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ٹریفک انتظامیہ سے کہ کم از کم ایک جو وارڈن ہے یہاں پہ اس کو جو ہے اس کی تنصیب کیا جائے تاکہ یہ جو حادثات ہیں اس میں بھی جو ہے اضافہ نہ ہو، دوسرا ٹریفک کی روانی جو بری طرح یہاں پہ متاثر ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکے۔ ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بہت مشکلات کا سامنا ہے، کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ حکومت کو چاہیے ادھر وارڈن والا کی ڈیوٹی لگے اور سڑک بھی دیکھے کیسے ٹوٹی پھوٹی، جب بارش ہوتی ہے یقین کرے اتنا ادھر کیچڑ ہو جاتا ہے نا تو اتنا مشکلات ہوتی ہے، لوگ دھیان نہیں دیتے اس کی طرف۔ جی بالکل، شہری جو ہے یہ انتہائی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ انتہائی مصروف چوک ہے، شہر کی مین شرح ہے جہاں پہ ٹریفک کا جو انتظام ہے وہ بری طرح یہاں پہ درہم برہم ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے ٹریفک انتظامیہ سے کہ یہاں پہ جو ہے وارڈن کی تنصیب کی جائے تاکہ جو بری طرح جو حادثات ہیں اس میں جو ہے روک تھام آ سکے۔ جی، ٹریفک کا نظام بری طرح درہم برہم ہے، شہریوں کا ٹریفک پولیس سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تاجر برادری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ظلم قرار دے دیا۔ تاجر کہتے ہیں اقدام سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے اور مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، حکومت فی الفور اضافہ واپس لے۔ تفصیلات فیصل آباد سے فضیل احمد کی رپورٹ میں دیکھیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 1 روپے جبکہ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا گیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔
ताजर बरादरी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। ताजरों का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर किराए फौरी बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई बढ़ती है। देखिए, जो डीजल महंगा हुआ है उसका डायरेक्ट असर जो ट्रांसपोर्टरों ने डाला है वो किरायों की मद में बढ़ा दिया हुआ है। जो मजदूर काम आगे ही नहीं था, बेचारे मार्केट में आते थे, आज किराए बढ़े हुए हैं, वो इतने परेशान हैं कि गवर्नमेंट को इसका कोई असर ही नहीं। कि गवर्नमेंट को कम से कम इस चीज़ पे तो देखना चाहिए कि आवाम के साथ थोड़ी बहुत जो है ना रिलीफ वाला काम करें। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल के साथ जब किराए बढ़ने हैं तो फिर आवाम ने परेशान होना। ताजर बरादरी की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद में दर्जनों आसामियां खाली। रिक्रूटमेंट की दोबारा भर्ती का अमल भी शुरू न हो सका। स्केल 1 से 15 तक की दर्जनों सीटें अमले की राह तकने लगी। मुलाजिमीन का फुकदान, टैक्स वसूलियों और टैक्स नेट की तौसील में रुकावट बढ़ने लगा। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दर्जनों असामियां खाली हैं। 2 साल कबल मंसूख की जाने वाली रिक्रूटमेंट पर दोबारा भर्ती के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। भर्ती का अमल शुरू न होने से स्केल 1 से 15 तक की दर्जनों सीटें तैनाती की मुंतजिर है। मुलाजमीन की कमी के बाइस टैक्स वसूलियों और टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुश्किलात दरपेश आने लगी। इसके बरक्स FBR हुकाम का कहना था कि खाली असामियों पर भर्ती का इख्तियार बोर्ड के पास है। हुकूमत ने किसी किस्म की भर्ती के लिए ताहाल फंड्स फ्राहम नहीं किए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने शोरकोट के रिहायशियों को नए इम्तिहान में डाल दिया। बैरून मुल्क जाने के लिए पोलियो कार्ड का हुसूल दुश्वार बन गया। शहरी कहते हैं जंग जाने से पैसा और वक्त जाया होते हैं। मुकामी सतह पर सहूलत फ्राहमी की जाए। तफसीलात शहजाद अली की रिपोर्ट में। हुकूमती हदायत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए पोलियो कार्ड बनवाना लाजिम करार दिया गया था। पोलियो कार्ड बनवाने के लिए शोरकोट के रहायशियों को DHQ अस्पताल झंग का रुख करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि पोलियो कार्ड के लिए DHQ अस्पताल झंग जाने से उनका वक्त और पैसा जाया होता है। पोलियो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम शोरकोट आए हैं, लेकिन यहाँ सर्टिफिकेट नहीं बना के दे रहे। वो कहते हैं जी DHQ जंग जाना पड़ेगा, लिहाजा वहाँ जाने के लिए हमें वक्त ज़ाया करना पड़ता है और खर्चा खराजात भी हैं, किराया लगता है और टाइम का ज़्यादा भी आ लिया। शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हुए कहना था कि शोरकोट के रहायशियों के लिए मुकामी सतह पर ही पोलियो कार्ड की फरहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41, शोरकोट। थिएटर्स के हवाले से पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर अमल जारी। फैसलाबाद के थिएटर्स में सेंसरिंग होने लगी। सबीना और मिनरवा थिएटर में पेश किए जाने वाले ड्रामों का जायजा लिया गया। सेंसर कमेटी ने रिहर्सल्स देखी। सबीना थिएटर में फलक शेर, राशिद कमाल, तस्लीम अब्बास और दीगर अदाकारी पेश करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं अहमद साहब। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुख्तलिफ थिएटर्स में जो है वो ड्रामों का इनेकाद किया गया है। ड्रामों से कबल जो है वो सेंसरिंग कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ ड्रामे जो है उनकी सेंसर की जा रही है। इस टाइम हम जो सबीना थिएटर में मौजूद हैं। इससे कबल जो है वो मुनरवा थिएटर, मुनरवा गोल्ड, इसके साथ साथ जो है वो नूरमहल थिएटर की भी जो है वो सेंसरिंग की गई है। यहाँ पर जो है सेंसर कमेटी की जानिब से देखा जा रहा है कि कोई जो है वो गैर अखलाकी हरकत या फाशी जो है वो नहीं की जा रही। इसी वाले से अगर मेरा कैमरामैन आपको वहाँ पर दिखा सके तो सेंसरिंग कमेटी भी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो कि सेंसर कर रही है ड्रामे को। और ड्रामा सेंसर होने के बाद जो है वो शहरियों को, शायकीन को यहाँ पर जो है वो दिखाया जाएगा। मेरे पीछे इस टाइम जो है वो ड्रामे की रिहर्सल जो है वो भी जारी है, जो कि कॉमेडी से भरपूर ड्रामा है। सबीना थिएटर में इस टाइम जो है वो इसकी सेंसर की जा रही है। इसमें अगर बात करें तो राशिद कमाल, इसके साथ साथ फलक शेर, शबीर आकाश, शाहिद हाशमी और मुख्तलिफ जो स्टेज अदाकार हैं इसमें जो है वो अपनी अदाकारी पेश कर रहे हैं। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं कि जंग में कपास के काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत 31 मार्च तक कपास की अगेती काश्त मुकम्मल करने वाले किसानों को 25,000 रुपए सब्सिडी देगी। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने प्री सीजन कपास की काश्त करने वाले किसानों के लिए माली मावनत का ऐलान कर दिया। इस स्कीम के तहत काश्तकारों को 25,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। तहम इस स्कीम में सिर्फ वो किसान अहल होंगे जो 31 मार्च तक कम अज कम 5 एकड़ रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल करेंगे। रकूम की फराहमी किसान कार्ड के जरिए की जाएगी ताकि शफाफियत और तेज तर अमल यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत का यह इकदाम कपास की पैदावार बढ़ाने और किसानों को माशी सहूलियात फराहम करने के लिए उठाया गया है। माहिरीन ज़राअत का हुकूमती इकदाम को मुस्बत करार देते हुए कहना था कि इससे किसानों को बरवक्त फसल काश्त करने में मदद मिलेगी, जिसका मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। काश्तकारों को हिदायत जारी की गई कि वो स्कीम से फायदा उठाने के लिए मुकर्रर मुद्दत के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं। कैमरामैन असीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41।
बढ़ाना हो जमालियाती हुसन, जा देनी हो शुगर को मात, तो मटर देंगे आपका साथ। विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन के लिए गोश्त या फल ही नहीं, मटर भी घर लाएं और भरपूर जायका पाएं। तफसीलात भवाना फखर से फखर दीवान भुट्टा की रिपोर्ट। बवाना मटर बड़े सगीर पाको हिंद की मशहूर सब्जी। मटर में विटामिन सी, फाइबर और प्रोटीन होता है। मटर तवानाई के अलावा निजामी इंहजाम और शुगर कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। सब्ज मटर जायके और सेहत के लिए ही नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। काश्तकारों का कहना है कि मटर 1 एकड़ काश्त, खाद, बीज, डीजल पर 1 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि पानी, स्प्रे खर्च करके मटर को तैयार करके मंडी तक पहुँचाने में 50,000 रुपए तक खर्च आता है। इसनों असां अक्तूबर काश्त कीता है और इस ते जेड़ा खर्चा आया है खाद दा, बी दा, डीजल दा, टोटल पेस्टिसाइड अद्वियात दा लाख रुपया फी एकड़ है इस ते खर्चा। उस तो बाद अगे इहदी चुनाई दा अमल है, इनू मंडी पहुंचाण तक टोटल साडा ना 1.5 लाख रुपया इस ते आ रहा है खर्चा। काश्तकारों का मजीद कहना है कि 35 किलो मटर की फी बोरी 1300-1400 रुपए फरोख्त हो रही है। मार्केट में मटर 80 रुपए से 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मौसमी असरात की वजह से पैदावार में कमी हुई, फी एकड़ 70,000 तक नुकसान हो रहा है। हुकूमत मटर और दीगर सब्जियों, फलों, फसलों का सरकारी सतह पर रेट तयन करे। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात, ज़रूरी मशीनरी, डीजल की कीमत कम करके हुकूमत सरकारी सतह पर मटर की कीमत बढ़ाए ताकि काश्तकार नुकसान से बच सके। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। खिलाड़ियों को मैदान में जाने से पहले महंगाई ने जकड़ लिया। रैकेट और महंगी शटल कॉक बैडमिंटन की खिलाड़ियों के ख्वाब चिकनाचूर करने लगी। रैकेट 500 से 1,000 रुपए तक महंगा, शटल कॉक की कीमत में भी 300 रुपए तक का इजाफा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महंगाई की लहर खेल के मैदान भी वीरान करने लगी। बैडमिंटन के सामान को भी महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। 1,000 में मिलने वाला रैकेट 2,000 रुपए तक जा पहुंचा। फी दर्जन 700 रुपए में मिलने वाली शटल कॉक भी 1,000 रुपए में मिलने लगी। अच्छी क्वालिटी का रैकेट और शटल कॉक 3 से 7,000 रुपए में दस्तयाब। दुकानदार का कहना था इंपोर्टेड खेलों के सामान की कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है। रैकेट की कीमतें ऐसी हैं जो टॉप प्राइस में उनमें थोड़ा सा डिफरेंट पड़ा है, वो जंप की हैं थोड़ी सी, और मिड की प्राइजें वो कस्टमर के प्राइस के हिसाब से होती हैं। खिलाड़ी कहते हैं खेलों के सामान की कीमतों में कमी से नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलने का रुझान बढ़ सकता है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद प्रेस क्लब में जश्न विलादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तकरीब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अज़ादार विंग ने एहतमाम किया। तकरीब की सदारत सूबाई सदर MWM डॉक्टर इफ्तिखार नकवी ने की। शुरका ने इमाम अली मुकाम के हजूर नज़राना अकीदत पेश किया। इलामा सैयद इकबाल रिजवी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, तनवीर तारर, अब्दुल रज़ाक आबिद, हुसनैन शरासी भी शरीक हुए। तकरीब में तमाम मसलिक से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम भी मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं।